Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. So, welcome to JIV CIV Prep. So, guys, in this particular session, we are going to discuss our unit number 28, which is all around financial derivatives. Okay. So, and this is the last unit from our module C as well. Okay. So, module C, which is generally known for financial arithmetic and all over the management of financial data. So we have ratio analysis, an overview, आपका annuities, YTM, forex, capital and structure and cost of capital, capital investment, equipment leasing and lease finance, working capital management, and the final one is derivative. Okay, so इसके साथ हमारा आज आपका मॉड्यूल सी कंप्लीट हो जाएगा. So derivative is again very important unit. Why so? Reason it is part of your IE and IFS as well. ठीक है, तो यहाँ से 3-4 यूनिट ऐसे थे जो IE and IFS सब्जेक्ट के अंदर भी हैं और यहाँ पे भी हैं. ठीक है, so you will have dual benefit with these particular topics. So we are going to practice number of MCQs and case studies related to derivative in this particular session. Okay, let's have a quick look about the course content, guys. So the basic introduction, derivative market, regulators of derivatives, type of derivatives, important derivative product, then use of credit derivative for risk management. Okay, so these are the subtopics which are generally part of this particular unit. So see guys, if you ask me the important areas, so introduction or derivative market is all about like what is derivative, what is the benefit of derivative or uses of derivatives and all that generally comes under this one. ठीक है, so like आप बहुत बार आपने definition सुना होगा ना, derivative is a financial instruments whose value is derived from or dependent upon an underlying asset. Okay, underlying asset could be a stock, it could be any commodity, currency and all that. So this part, the feature of derivative contract, you can expect one question based on this. Regulators of derivative, we have two primary regulator. One is SEBI, another one is RBI. RBI that generally regulate currency derivative and your interest rate derivative and currency swap. These three type of derivatives get regulated by RBI. Rest are regulated by SEBI itself. Okay? Then types of derivatives. So we have three major classification of derivatives: your options, future and forward. Okay, then fourth one sorry, आपका option we have, then we have your option, future, forward and swap. Sorry, fourth type आपका. ठीक है, so swap one is very important one for this अगर हम बात करते हैं AFM सब्जेक्ट के लिए, बिकॉज वी जनरली यूज दैट पर्टिकुलर वन इन द रिस्क मैनेजमेंट इटसेल्फ. ठीक है, तो swap is kind of a मतलब जैसे it is an agreement between two parties where they generally exchange fixed rate with floating rate. ठीक है, future और आपका options, ये बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा. एंड आई हैव स्पेंड अराउंड 1 hour 40 minute टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर यूनिट. इतना डिटेल में आपको बढ़ाया है. ठीक है, तो अगर आपने वो देख लिया ना, बिलीव मी गाइस, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम अगर आपको 80-90% भी समझ में आया होगा. ठीक है, सो इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव प्रोडक्ट इन इंडिया सेम एज यूज ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव्स. ठीक है, सो ये सारे आपके कोर्स कंटेंट हैं जो इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे. एंड क्वेश्चन विल बी, किस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं और पास्ट में पूछे गए हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन इटसेल्फ. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन की आपका विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव. ठीक है, सो जो पहला सब टॉपिक है उसके संबंध में characteristics or features of derivative contract. ठीक है, so their value is derived from an underlying asset. True. They always require physical delivery. No, not always. ठीक है, in some case of like commodity derivatives we do have, and even in it can be in the case of forward contract, but it is not always like exchange traded derivatives like future and options. So there is no physical delivery, and they are generally get settled on cash basis. So this is not a feature. They can be used for both hedging and speculation. So most of the time derivative contract are generally designed to hedge the our underlying asset or other financial positions.
बट समटाइम ट्रेडर्स दे ऑल्सो यूज फॉर द स्पेक्यूलेशन पर्पस, ठीक है। तो जैसे मतलब जब कोर इनको डिजाइन किया गया था तो हेजिंग वाज द प्राइमरी गोल, ठीक है। अब इसमें भी जैसे फॉरवर्ड इज जनरली यूज फॉर हेजिंग एंड फ्यूचर ऑप्शंस दे आर जनरली यूज फॉर द ट्रेडिंग, ठीक है। इस तरीके से आप सेग्रीगेशन कर सकते हैं। दे ऑफन इन्वॉल्व लिवरेज allowing control over a larger position with a smaller investment. So while you invest in derivatives, okay, let's say there is one like XYZ company which is listed in stock exchange. Okay? If you are trading in the derivative contract of that particular company, let's assume Reliance. तो अब Reliance का जैसे जो एक आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी वैल्यू कैसे होगी, करंट मार्केट प्राइस इनटू लॉट साइज, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिंग जो होता है आपका लॉट साइज में, ठीक है। लेट्स से द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज 10 लाख, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है आपका 10 लाख रुपीज है, बट यू डू नॉट हैव टू invest entire 10 lakh rupees. In case of this, you have to pay initial amount, which is generally known as margin. Okay, let's say the margin is 10% for this. So that means by paying 1 lakh rupees, you are owning a contract worth size 10 lakh rupees, okay, and you have to maintain this particular margin on M2M basis, mark to market basis, ठीक है। ऐसे गोल्ड में आपका लेट्स से गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू इज 80 lakhs, you do not have to pay 80 lakh rupees upfront, okay, you just have to pay the initial margin which is get decided by the exchange itself, okay। So that means it is generally known as financial leverage, ठीक है। So it derivative contract are highly leveraged, ठीक है। So that means this is the relation। तो आपको पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज है उतना पैसा इनिशियली पे करने की जरूरत नहीं होती है, यू जस्ट हैव टू पे द मार्जिन। इन केस ऑफ ऑप्शंस यू हैव टू पे अ प्रीमियम, प्रीमियम भी आपका लाइक दैट इज बेस्ड ऑन द टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, और वो कहीं ना कहीं बहुत कम साइड पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, कंपेयर टू देयर करंट प्राइसेस, करंट मार्केट प्राइसेस एंड ऑल, ठीक है। सो बी विल बी राइट आंसर। One of the key feature of derivative is that they derive their value from underlying asset। तो जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बोला कि डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हुज वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम एंड डिपेंडेंट अपॉन एन अंडरलाइंग एसेट। इसका मीनिंग मैंने आपको समझाया था कि जो वैल्यू हम लोग निकाले होते हैं, ठीक है। लेट्स से रिलायंस हमने बात किया, जैसे लेट्स से करंट मार्केट प्राइस इज 500 एंड इसका जो आपका अगले जैसे लेट्स से 1 month 2 month and 3 months contract are available, ठीक है। 1 month price it is showing suppose that 525, it is showing 539 and it is showing आपका let's say 545, ठीक है। So these values, these are the future values of this particular कंपनी, ठीक है। इसकी जो फ्यूचर वैल्यूज हैं इसके आपका, ठीक है। एंड वी जनरली कैलकुलेटेड दीज पर्टिकुलर फ्यूचर वैल्यूज, दीज फ्यूचर वैल्यूज आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दिस करंट मार्केट प्राइस। जैसे मैंने आपको SCRT समझाया था, ठीक है, या ऐसे ब्लैक स्कॉल मॉडलिंग या अदर्स, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को आपका यूज करते हैं। आपके उसमें उतना कैलकुलेशन आपके नहीं है तो इतना ज़्यादा अंदर मत घुसिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब अगर इसका प्राइसेस बढ़ेगा तो इनके प्राइसेस भी बढ़ेंगे, ठीक है, एंड इसका प्राइस अगर घटेगा this price will also come down. So this is the relation, ठीक है। Which can stock commodity, these can be the underlying. However, not all derivative are required physical delivery. Many such as index future options are settled on cash basis, ठीक है। The other options correctly script, जैसे हमने डिस्कशन किया, ठीक है। नेक्स्ट वन गाइस, which of the following best explain the derivatives are considered हाई रिस्क फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब ये हाई रिस्क फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्यों है, तो सी व्हाट हैपन लाइक जैसे जब आप ट्रेजरी को पढ़ेंगे ना आने वाले समय में CAIB के अंदर, ठीक है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट दे जनरली ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर एंड दिस इज जनरली कम्स अंडर ट्रेडिंग बुक ऑफ द बैंक, ठीक है। सो क्या होता है आपका कि लेट्स से योर बैंक ओन लेट्स से 100 करोड़ रुपीज करेंसी आपका, ठीक है, जैसे आपके डॉलर्स, आपके पास 100 करोड़ रुपीज के डॉलर हैं, ठीक है, 100 करोड़ डॉलर हैं आपके पास, ठीक है, जिनकी मार्केट वैल्यू आपका INRs के अंदर 100 करोड़ रुपीज है, ठीक है। सो यू हैव दिस पर्टिकुलर वन इन योर कैश अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वैल्यूएशन यू कैन मेक पोजीशन इन करेंसी फ्यूचर, इस जो आपका USD INR की जो करेंसी फ्यूचर है उसमें आप 100 करोड़ रुपीस की वैल्यू के कॉन्ट्रैक्ट को आपका बाय कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल रुपी, ठीक है। तो ये क्या है, लिवरेज नहीं, ठीक है। डेरिवेटिव्स आर हाईली लिवरेज फंड, ठीक है। इससे अब कई बार क्या होता है ना आपका, जैसे अगर मार्केट आपके पोजीशन के अगेंस्ट बिहेव कर जाएगा तो दैट विल बी कहीं ना कहीं जो मार्केट रिस्क है
उसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है। स्पेशली दिस हैपन विद कॉमोडिटीज, ठीक है। कॉमोडिटीज आर हाईली वोलेटाइल्स सिक्योरिटीज, ठीक है। लेट्स से हमने आपका कोई करेंसी, जैसे कोई कॉमोडिटी आपका, लेट्स से वी इन्वेस्टेड 100 करोड़ रुपीज इन क्रूड ऑयल, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो क्रूड ऑयल में हमने आपका क्या किया, इन्वेस्ट किया आपका कितना, 100 करोड़ रुपीज कॉमोडिटीज के अंदर, ठीक है। अब 100 करोड़ रुपीज में आपको 1000 करोड़ रुपीज तक का कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू मिल जाएंगे। अब अचानक से देयर वाज सम न्यूज फ्रॉम सऊदी अरब और सम ओपेक नेशन, ठीक है, जिसकी वजह से दिस जो क्रूड ऑयल का प्राइस था, लेट्स से इट वाज 130 बैरल पर डॉलर, ठीक है, एट दैट टाइम व्हेन वी परचेज दिस पर्टिकुलर वन, एंड देयर वाज सम सडन न्यूज व्हिच about the OPEC nation, they are increasing the supply and all, ऐसा कुछ, तो एकदम से इसका प्राइस क्या हुआ, नीचे आना शुरू होगा। इट केम डाउन टू लेट्स से $120 पर बैरल, ठीक है, एक बैरल की जो कीमत है वो इतनी होगी। सो दिस विल एडवर्सली इम्पैक्ट योर पोर्टफोलियो। तो अब क्या होता है कि छोटा सा चेंज होगा, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा ड्यू टू दिस लिवरेज थिंग्स, ठीक है। सो डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन आर ऑलवेज स्पेक्युलेटिव, no. Derivative market are not regulated, no. Derivative involve leverage, बिल्कुल सही, ठीक है, which amplify both potential gain and losses 100%। तो अब क्या हो रहा था, हमें फायदा भी हो रहा था, बट यही चीज आपका अगर रिवर्स वे में हो जाएगी तो आपको नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। सो सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन। सो लेवरेज is a key characteristic of derivative, allowing investor to control a large position with a relatively small initial amount, which is generally known as margin. While this can lead to high returns, ठीक है, आप 1 करोड़ रुपए, जैसे आपका let's say the portfolio size was like you invested 1 करोड़ rupees, suppose that your limit is 10x, ठीक है, आपका मतलब 10 करोड़ रुपए का हमने कोई पोर्टफोलियो कोई सिक्योरिटी खरीदा बाय पेइंग 1 करोड़ रुपीज, ठीक है। अब ये सपोज दैट योर एनालिसिस वाज ट्रू, इसका प्राइसेस बढ़ा, ये बढ़ के हो गया 12 करोड़, ठीक है। दैट मीन बाय इन्वेस्टिंग 1 करोड़ रुपीज यू मेड आपका कितना, 2 करोड़ रुपीज, ठीक है। 1 करोड़ का आपने क्या कर दिया, 2 करोड़ रुपए एडिशनल आपका अर्न कर दिया, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अगर आप इसको 12 करोड़ पे सेल करोगे, दैट मीन्स यू हैव मेड 2 करोड़ रुपीज, बट यही आपका रिवर्स साइड में भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज लॉसेस कैन एक्सीड अदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका, ठीक है। तो हो सकता है आपका 1 करोड़ रुपए जीरो हो जाए, या ऑप्शंस के केस में जो भी प्रीमियम आपने पे किया है वो आपका जीरो हो सकता है इन केस ऑफ कॉल और पुट ऑप्शन, ठीक है। Which of the following key disadvantages of OTC derivatives compared to exchange traded derivatives? तो ये हमने डिस्कस किया था, आई होप सबको याद होंगी ये सारी चीजें, ठीक है। सो OTC ओवर द काउंटर वर्सेस एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव, ठीक है। सो ओवर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, ठीक है, क्या होते हैं, याद है ना आप लोगों को, हाँ है ना, थोड़ा सा कमेंट कर दिया करें गाइस, ठीक है। सो OTC आपका, OTC these are the private contract, ठीक है। Private means these are the private contract or close contract between two parties, ठीक है। बैंक और किसी आपका ट्रेडर या किसी बिजनेस के बीच में, या मेरे और आपके बीच में एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व। दिस इज आपका, ये क्या होते हैं, दीज आर exchange driven contract. These type of trading happen at recognized stock exchange like BSE और NSE। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है आपका, जो सिर्फ एक्सचेंज के अंदर आपकी हो रही होती है, ठीक है। BSE एंड NSE के अंदर आपका ये जो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। सी नाउ द डिफरेंस, लाइक यहाँ पे बेसिकली द काउंटर पार्टी रिस्क इज हाई इन दिस पर्टिकुलर केस। दो ही पार्टीज थी, जिसका नुकसान हो रहा था वो भाग गया, बट इन दिस पर्टिकुलर केस counterparty risk is mitigated by the exchange itself, ठीक है। exchange stand the guarantee in case of exchange traded derivatives, ठीक है, by asking or maintaining the minimum margin required for entering in that particular contract, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या समझा था, these are illiquid, ठीक है। लिक्विडिटी वाइज अगर आप इसको देखते हैं, these are less liquid, these are highly liquid, ठीक है। इसके अलावा these are customized contract, ठीक है। जो OTC है वो आपका क्या होता है, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है by the parties who involve in that particular contract. These are standardized contract and these are standardized by the exchange itself. Less liquid, highly liquid. Transparency wise, these are highly transparent. If you open derivative contract of any XYZ company, you can see. जैसे आप NSE का वेबसाइट खोलिए, आपने TCS का फ्यूचर ओपन किया, तो you'll see the top 5 buyer, top 5 seller, total buyer, total seller. But in case of OTC, this is not available, right?
सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिसएडवांटेजेस ऑफ ओटीसी? तो हमने क्या समझा था? दे आर illiquid, they are less transparent, they are counterparty risk is involved in that particular case. Benefit side में क्या था आपका? Initial margin is not required and there is like the contract can be customized by the parties. ठीक है, तो जो नेगेटिव साइड में थे उनमें से एक मिल जाएगा. OTC derivative have lower counterparty risk? No, they have higher counterparty risk. ये गलत है. OTC derivative offer less flexibility? No, they are more flexible, customizable है. ठीक है. OTC derivative are subject to standardized regulation? No, they are customized. OTC derivative carry higher counterparty risk? बिल्कुल सही है. ठीक है, 100% due to absence of central clearing mechanism and there is no intermediary generally involved in this particular case. ठीक है, समझ में आया? तो हम एक्सचेंज ड्रिवन में क्या होता है कि जैसे मैं बायर हूं, आप सेलर हैं, और हम दोनों की जो मीट करा रहा है वो कौन करा रहा है? एज अ मीडिएटर बाय द एक्सचेंज, एनएससी हो, बीएससी या कोई अदर आपका रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हो. ठीक है, एंड वंस like as a buyer when I'll make a bid, so NSE will ask me for to pay the initial margin. ठीक है, तो उस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन करवा रहे हैं. बट यहाँ पे मेरे और आपके बीच में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है. कल के डेट में मुझे नुकसान हो रहा था, मैंने जो वादा किया था आपको 6 महीने बाद इतना पे करूंगा, उससे निकल गया. ठीक है, सो दैट इज द वन. तो ये आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा, विल गेट 100% क्लियरिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स फ्रॉम ओटीसी? अब ये बन जाएगा. Exchange traded derivative allow customization? No, they are standardized contract. Exchange traded derivative have higher liquidity, true, and transparency compared to OTC. 100% correct. OTC derivative require margin, they don't require margin. OTC derivative are always risk free? No, they are kind of counterparty risk is involved in this particular case. तो B हमारा करेक्ट आंसर होगा. तो देखो कॉन्सेप्ट का खेल है सारा. ठीक है, अब मैं आपसे कॉन्सेप्ट में ये नहीं डिमांड कर रहा हूँ कि लाइक उस जो आपकी 700 पेजेस की बुक है पूरा उसको पढ़ो, नहीं. हर एक टॉपिक के कुछ कोर एरियाज हैं. ठीक है, एंड आई हैव डन अ सेशन फॉर 12 आवर्स. वो 12 घंटे अगर आपने पढ़ लिया, उसका 70-80% भी समझ लिया ना, with these particular practice I'll make sure कि you'll score 65-70 in your upcoming examination. ठीक है, इतना एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है. JIB है नहीं, CIB में जब आओगे फॉर BFM, जैसे आई टीच BFM एंड ABM. ठीक है, तो BFM में आपको क्या मिलेगा? फॉर BFM फॉर वन मॉड्यूल आई लास्ट मॉड्यूल A and B 12 आवर ईच, देन आपका C and D 7 and 8 आवर्स ईच. ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट है. ठीक है, दिस इज माय एक्सपीरियंस विद दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. तो आप उनका फायदा उठाइए और उस तरीके से प्रिपेयर कीजिए. ठीक है, देखो सी, हम लोग बैंकर हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम सब कुछ कवर कर सकते हैं, राइट? तो जो लिमिटेड टाइम है उसमें डेडिकेटेड स्टडी करोगे, बहुत बढ़िया आपका परफॉर्मेंस होने वाला. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, सो एज आई सेड लाइक वी हैव 4 टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स. ठीक है, तो हमारे पास क्या है? 4 डेरिवेटिव्स हैं. वन इज आपका ऑप्शन, दूसरा आपका फ्यूचर, ठीक है, तीसरा आपका फॉरवर्ड एंड चौथा आपका स्वैप. ठीक है, सो वी हैव दीज 4 टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स. ठीक है, अब मैंने अलग अलग क्यों लिखे? दीज आर बेसिकली एक्सचेंज ड्रिवन. ठीक है, दीज आर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स. ठीक है, एंड दीज आर ओवर द काउंटर. ठीक है, दीज आर ओवर द काउंटर. अब एक्सचेंज ड्रिवन, now you know the difference between exchange driven and OTC. same pointers you'll see here also. ठीक है, जैसे अगर मैं आपका फ्यूचर एंड फॉरवर्ड के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता हूँ, इट इज OTC, इट इज एक्सचेंज ड्रिवन. कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कस्टमाइज, इट इज स्टैंडर्डाइज्ड. ट्रांसपेरेंसी आपका लेस ट्रांसपेरेंट, इलिक्विड लिक्विड, ऐसे आपका सेम इन दोनों के बीच में या आपका इन दोनों के बीच में ऐसे रिलेशन हम लोग आपका क्या कर सकते हैं? बिल्ड कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? तो आप क्वेश्चन पाइए. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर, पहले ही गलत हो गया. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैंडर्डाइज्ड, बिल्कुल सही. वेयर एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर कस्टमाइज्ड, बिल्कुल सही है. बोथ फ्यूचर एंड फॉरवर्ड ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, गलत है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर गारंटीड बाय द एक्सचेंज, नो. ठीक है, तो क्या होगा आपका? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर. समझ में आ रहा? देखो लॉजिकली जाओ. ठीक है, चीजों के पीछे आसानी से सारी चीजें आपका समझ में आ जाएंगी. नेक्स्ट वन, अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डिफर फ्रॉम अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज? तो सेम है आपका फ्यूचर
एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस। अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर मार्जिन पेमेंट, नो, फॉरवर्ड में मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फ्यूचर में होती है, ठीक है। अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज डेली सेटलमेंट, नो, ठीक है, ये भी आपका गलत है, ठीक है। फ्यूचर हो सकता है आपका, ठीक है, और फ्यूचर में भी डेट होते हैं वैसे। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज काउंटर पार्टी रिस्क, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज काउंटर पार्टी रिस्क, बिल्कुल। वेयर एज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज गारंटीड बाय द एक्सचेंज, ठीक है, बिल्कुल सही है तीसरा, ठीक है, थर्ड वन इज करेक्ट, ठीक है। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट काउंटर पार्टी रिस्क यहाँ पे नहीं है। अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज मोर लिक्विड, नो, आपका फ्यूचर इज मोर लिक्विड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस। अब डिस्कशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो आई हैव मेड वन चार्ट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, फ्यूचर वर्सेस फॉरवर्ड बोलो, या फिर आपका फ्यूचर वर्सेस स्वैप बोलो, या ऑप्शन वर्सेस फॉरवर्ड बोलो, ऑप्शन वर्सेस स्वैप बोलो। जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड आपका ये है ओटीसी, ठीक है। सो प्राइवेट एग्रीमेंट्स बिटवीन टू पार्टीज। क्लियरिंग हाउस गारंटी द ट्रांजेक्शन, chances of default, counterparty risk, future contract are mark to market, ठीक है, settlement of the contract occur at the end, settlement for future contract can occur over range of date, यहाँ पे आपका at the one single settlement, frequently employed by the speculators and it is for the hedgers, ठीक है। तो ये जो differences हैं इनको आप ध्यान रखिए, ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Which of the following is true regarding options contract? Okay, now it is options. So options which generally give right to buy or sell to the holder of that particular options. ठीक है, it is specific time duration. ठीक है, and in India we have European options. ठीक है, so a put call option और put option में क्या होता है? Call option that generally give right to buy and put option that generally give right to sell, ठीक है। So a put option give holder right to sell, ठीक है, ये गलत है। A call option give holder the obligation to sell, no. A put option give the holder the right to sell an asset at a predetermined price, बिल्कुल सही, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है आपका, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं बेसिकली ऑप्शंस का, सो वी हैव टू टाइप ऑफ ऑप्शंस। ये मैंने आपको कहीं ना कहीं हमने कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल में इनको पढ़ा है इस पर्टिकुलर यूनिट को, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एनी हाउ, ठीक है। कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, ठीक है। सो कॉल ऑप्शन व्हेन वी परचेज कॉल ऑप्शन, व्हेन वी हैव सॉरी कॉल ऑप्शन हम लोग कब परचेज करते हैं आपका, जब मार्केट या जो सिक्योरिटी है जो अंडरलाइंग है उसके प्राइसेस बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है। सो व्हेन वी आर बुलिश अबाउट द सिक्योरिटी, ठीक है, कॉल ऑप्शन। एंड व्हेन वी आर बियरिश अबाउट द सिक्योरिटी, ठीक है, जब हमें लगता है नीचे आएगा, ठीक है, बियरिश है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपका पुट ऑप्शन आपका परचेज करेंगे। लेट्स से सपोज दैट आपका SBI, ठीक है, SBI का करंट मार्केट प्राइस है सपोज दैट 370 रुपीज पर शेयर, ठीक है, इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। अब देखो देयर आर टू डिफरेंट इन्वेस्टर्स, ठीक है। इन्वेस्टर ए, आपका इन्वेस्टर ए है, ठीक है, जिसको लगता है कि आने वाले समय में ये जो आने वाले एक मंथ के अंदर या 2 महीने के अंदर SBI का प्राइस विल गो अप टू सपोज दैट 390, ठीक है, बाय द एंड ऑफ अप्रैल, यहां तक पहुंच जाएगा। सो व्हाट मिस्टर ए विल डू, ठीक है, तो ये इसका जो अप्रैल मंथ का आपका 390 रुपीज का जो स्ट्राइक प्राइस है उसको परचेज करेगा, उसको बाय करेगा, ठीक है, उसकी कॉल बाय करेगा, ठीक है, कॉल बाय करेगा, उसका जो भी प्रीमियम आपका होगा वो इनको पे करना पड़ेगा। इन केस ऑफ देयर इज अनदर पार्टी कॉल मिस्टर वाई, जिसको लगता है कि आने वाले समय में SBI का प्राइस विल कम डाउन, ठीक है, और SBI का प्राइस बाय द एंड ऑफ अप्रैल ये आ जाएगा 360 रुपए, ठीक है। सो व्हाट मिस्टर वाई विल डू, दे विल बाय पुट ऑप्शन, ठीक है, ये आपका इसका पुट बाय करेगा कितने के स्ट्राइक प्राइस का, स्ट्राइक प्राइस कितने का होगा आपका 360 रुपीज, और उसका जो भी प्रीमियम होगा वो इनको आपको पे करना होगा, ठीक है। सो इफ यू हैव बुलिश, like if you are bullish about the security you will buy the call option, and if you are bearish about the security you will buy put option, you will buy put option, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पुट मतलब सिंपल सा लॉजिक है, कॉल मतलब ऊपर जाएगा, पुट मतलब नीचे आएगा, अब दोनों में ही बाय करोगे तब। अब अगर आप अगर थोड़ा कई बार मैंने देखा ना कंफ्यूजन, पुट है तो सेल करेंगे तो फायदा, नो, अगर आपका पुट है अगर आप इसको सेल कर दोगे ना दैट मीन्स यू आर बियरिश, यू आर बुलिश अबाउट दैट सिक्योरिटी, ठीक है। इफ यू आर, जैसे अगर आप ये जैसे व्हाट दिस पर्सन ए कैन डू, ठीक है, ए क्या कर सकता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, इफ ही इज श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर वन, एक तो ये क्या करेगा आपका बाय कॉल ऑप्शन, ठीक है, एक तो आपका ये बाय कॉल ऑप्शन, कॉल को बाय करेगा,
दूसरा सेल पुट ऑप्शन, ठीक है, ये आपका इसकी पुट ऑप्शन को भी सेल कर सकता है जिससे जो प्रीमियम है वो इसको मिल जाएगा। सो दीज काइंड ऑफ ये स्ट्रेटेजी, अगर आप 100% बियरिश हैं, व्हाट यू विल डू, पहले आपका बाय पुट ऑप्शन, ठीक है, बाय पुट ऑप्शन ये पहला आपका काम होगा। दूसरा यू कैन ऑल्सो सेल कॉल, ठीक है, इफ यू आर 100% बुलिश अबाउट दैट पर्टिकुलर वन, तो पुट से तो फायदा होगा, जितना नीचे जाएगा उतना फायदा होगा। आपने क्या किया, कॉल को भी सेल कर दिया, उसका जो प्रीमियम चल रहा था उस समय का, उस प्रीमियम को भी आपने एज अ प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। सो दैट इज द वन, ठीक है। तो ये जो हमारा पुट ऑप्शन गिव द होल्डर द राइट right to sell an asset at a predetermined period. Yeah. So option contract provide the holder with the right but not an obligation to buy or sell. In case of call it is buy and in case of put it is sell. ठीक है, यहाँ से आप इसको ले लें। A put option specifically grant right to sell an asset at a predetermined price before or on the expiration date. ठीक है, again I'm saying I have done a video which जिसका लेंथ है आपका 1 hour 40 minute. If you'll watch that particular one, believe me guys, that is going to help you lifelong, ठीक है, not only in GIB and CIB. If you are a active investor or trader, so that will help you there also, ठीक है। So a trader buy European call option on a stock with a strike price of 100 rupees, ठीक है। यूरोपियन ऑप्शंस क्या होते हैं, जो एक्सपायरी डेट पे आपका एग्जीक्यूट होते हैं। एट एक्सपायरेशन द स्टॉक प्राइस इज 90, स्टॉक प्राइस कितना है आपका 90 है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस फॉर द ट्रेडर, ठीक है। तो इसने क्या किया, आपका कॉल ऑप्शन परचेज किया। देखो इसको मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपका ट्रेडर है, उसने एक XYZ लिमिटेड कंपनी का शेयर परचेज किया है, मतलब उसने इसका कॉल ऑप्शन परचेज किया है, कितने का, आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो 100 का, ठीक है, 100 का। इसको लगता था कि एक्सपायरी में आपका, जैसे इंडिया में एक्सपायरी कब होती है, लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो इसको ये लग रहा था कि जो लास्ट थर्सडे है इसने बाई किया है आपका ओपन पोजीशन, जिसको हम लोग बोल रखे हैं, स्ट्राइक प्राइस 100 रुपीज का, जिसका प्रीमियम इसने पे किया है सपोज दैट 10 रुपीज, 10 रुपए का इसका प्रीमियम था, ठीक है। तो इसकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, इसको लगता था XYZ कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा और ये 100 रुपए से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसने इसका कॉल ऑप्शन बाई किया, जिसके लिए इसने 10 रुपीज का प्रीमियम दिया। अब एक्चुअली व्हाट हैपेंड एट द एक्सपायरी डेट पे क्या हुआ आपका, ठीक है, कि इसका जो एक्सपायरी प्राइस था, जो एक्सपायरी के डेट पे आपका जो प्राइस था, दैट वाज हाउ मच, आपका 90 रुपीज। मतलब इसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो मीट नहीं हुई। सपोज दैट जिस दिन इसने एंटर किया 80 रुपीज में किया, ठीक है, इसको लगता था ऊपर जाएगा, और ऊपर कितना जाएगा, 100 से ऊपर जाएगा, ठीक है। ये ऊपर तो गया पर कितना गया, 90, सिर्फ 10 रुपए गया, आपकी स्ट्राइक प्राइस से नीचे है, तो इसको हम बोलते हैं आउट द मनी, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर केस इसका नुकसान क्या होगा, मतलब फायदा होगा नुकसान होगा, पहली बात तो नुकसान होगा क्योंकि उसको लगता था ऊपर जाएगा बट ये गया नहीं, ऊपर गया बट उतना नहीं गया जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस मतलब लाइक दिस इज माय लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, इससे ऊपर, उससे जितना ऊपर जाएगा उतना आपका फायदा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब एक्सपायरी प्राइस है 90, ठीक है, और इसने ये है, तो इस केस में इसका लॉस हुआ है। लॉस क्या होगा आपका, मैक्सिमम अमाउंट विच इज द मैक्सिमम लॉस अप टू प्रीमियम पेड, मतलब ये जो 10 रुपए है ना, दिस विल बिकम जीरो एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। ये जो 10 रुपए इसका प्राइस है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये लॉजिक कहां से आता है, इन केस ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शंस में क्या होता है, ठीक है, इफ यू लॉन्ग, आपका अगर आप ऑप्शन को लॉन्ग करते हैं, ठीक है, जैसे लॉन्ग कॉल, जैसे इसका जो केस है, दिस इज अ केस ऑफ लॉन्ग कॉल। तो लॉन्ग कॉल में आपका जो पे ऑफ बनेगा कैसे, जैसे लेट्स से दिस इज 10 रुपीज, दिस इज 20, दिस इज 50, ये आपका चार्ट है, ठीक है। तो जैसे 10 रुपीज का इसने क्या पे किया था, आपका प्रीमियम पे किया था 10 रुपीज का, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम लॉस, ठीक है। अब मतलब अगर ये यहां से नीचे आता है, नीचे कितना भी आ जाए, ठीक है, ये आपका 90 की जगह अगर जीरो भी हो जाता तो भी इसका जो मैक्स लॉस होता, दिस इज द मैक्सिमम लॉस, ठीक है, अप टू प्रीमियम पे, ठीक है। और अपर साइड ये आपका कितना भी ऊपर, सॉरी, अपर साइड ये आपका कितना भी ऊपर चला जाता, ठीक है, जैसे ये हो जाता आपका सपोज दैट 90 की जगह आपका 900, ठीक है, इसका प्रीमियम उसी तरीके से बढ़ता। तो क्या क्या बोलते हैं हम लोग, इन केस ऑफ लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट, आप अगर आप कॉल को लॉन्ग करोगे या पुट को लॉन्ग करोगे, पुट लॉन्ग करने का मतलब बेयरिश टर्न में आपका, ठीक है, अनलिमिटेड प्रॉफिट, ठीक है, क्या है आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट
अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड लॉस, ठीक है, लिमिटेड लॉस अप टू प्रीमियम पेड, ठीक है, दिस इज द वन। तो इस केस में क्या होगा आपका, द प्रीमियम पेड फॉर द ऑप्शन, तो इसका कितना नुकसान हुआ है आपका इस केस में। बट यहीं पे अगर जैसे ये लॉन्ग कॉल या लॉन्ग पुट में आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस, बट इन केस ऑफ व्हाइल यू सेल द ऑप्शन, अगर आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को सेल करोगे तो आपकी कहानी रिवर्स हो जाएगी। लिमिटेड प्रॉफिट अप टू प्रीमियम, अगर हमने इसको यहाँ पे सेल किया होता, इस केस में आपका 100 रुपए का स्ट्राइक प्राइस पे हमने सेल किया होता, और अगर नीचे नहीं आता, ठीक है, तो क्या होगा आपका उस केस में, कहीं ना कहीं आपका जैसे जो भी प्रीमियम आपने दिया है वो तो जाएगा, उसके अलावा जितना नीचे आएगा उतना ज्यादा, मतलब अनलिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट आपका इन केस ऑफ सेल, जब आप सेल कर रहे होते हैं, शॉर्ट सेलिंग भी इसको हम लोग बोलते हैं इस केस में, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, कॉन्सेप्ट वाइज उसमें जाओगे ना वीडियो में, आई हाईली रिकमेंड दैट वीडियो, तो जहाँ पे मैंने सारे ऑप्शंस के ना पे ऑफ आपको समझाए हैं, ठीक है, हाउ वी जनरली बिल्ड दिस पर्टिकुलर पे ऑफ, तो उसके बाद आपको ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा। वी हैव टू टाइप ऑफ ऑप्शंस इन दी वर्ल्ड, वन इज अमेरिकन ऑप्शन, अनदर वन इज यूरोपियन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शंस दुनिया भर में सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं, एंड दे do not have any kind of fixed expiry date, ठीक है, they can be exercised any time or any point, ठीक है, but European options they have a dedicated expiry date and they get executed on that particular date itself, ठीक है, उसी डेट पे वो खत्म होते हैं। जैसे इंडिया में यूरोपियन ऑप्शंस जैसे डेट क्या है, लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, जैसे अभी जो लाइक दिस मंथ इज फेब्रुवरी, तो फेब्रुवरी मंथ के जो सारे आपके डेरिवेटिव है ना फ्यूचर आपका ऑप्शन, दे विल गेट एक्सपायर ऑन लास्ट थर्सडे ऑफ फेब्रुवरी मंथ, ठीक है, वो उससे पहले जैसे इधर ट्रेडिंग होगा बट एक्सपायर नहीं होंगे, बट अमेरिकन में ऐसा आपका नहीं होता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मेन डिफरेंसेस बिटवीन अमेरिकन ऑप्शन एंड यूरोपियन ऑप्शन, तो क्या है आपका डिफरेंसेस देखते हैं। एन अमेरिकन ऑप्शन कैन ओनली बी एक्सरसाइज ऑन द एक्सपायरी, नो, यूरोपियन ऑप्शन होना चाहिए था। अमेरिकन ऑप्शन आर ओनली अवेलेबल फॉर स्टॉक ट्रेडिंग while the European options are for commodities, no. Both American and European options can be exercised at any time before expiry, no. And a European option can be only exercised on the expiration date, true. Whereas American option can be exercised at any time before the expiration, 100% true. तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्सपायरेशन के हिसाब से हमने यहाँ पे ये जो दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स इनके टूल, ये पूछा गया था लास्ट एग्जाम में ही आपका, ठीक है, INIFS के अंदर। बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एडवांटेजेस ऑफ ऑप्शन ओवर फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ऑप्शंस को क्यों प्रेफर करते हैं ट्रेडर आपका जनरली, सो ऑप्शन प्रोवाइड अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल विद लिमिटेड डाउनसाइड रिस्क, ये हो सकता है इफ यू आर केस ऑफ आपका लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट, ठीक है। ऑप्शन रिक्वायर नो ऑफरेंट कॉस्ट, नहीं, देयर इज रिक्वायर्ड, दैट इज जनरली नोन एज प्रीमियम, ठीक है, उसको हम लोग आपका क्या बोलते हैं, प्रीमियम, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। ऑप्शंस ऑलवेज गारंटी प्रॉफिट, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एलिमिनेटेड ऑल मार्केट रिस्क, नो, ठीक है, तो इनमें सबसे ज्यादा जो सूटेबल है दैट इज ऑप्शन ए आपका, ठीक है। नेक्स्ट वन, a company enter into a swap agreement where it agree to pay a fixed interest rate in exchange for receiving floating interest rate, तो इट इज विच टाइप ऑफ स्वैप, इट इज इंटरेस्ट रेट स्वैप, ठीक है। तो ये कौन से टाइप का स्वैप है, इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो व्हाट इज इंटरेस्ट रेट स्वैप, बेसिकली लेट्स से देयर आर टू कंपनी ए, they have taken loan from bank 50 crore rupees at the rate of suppose that 10% per annum, this is fixed आपका फिक्स रेट, ठीक है, they have taken loan on fixed arrangement, ठीक है। there is another company B, they have taken loan, let's say again आपका 50 crore rupees at the rate suppose that 8% plus MCLR, ठीक है, sorry, MCLR plus 1%, let's say. So they have taken loan which is linked with some indices, let's say MCLR plus 1.50%, ठीक है, this is the one. It is for 5 years, suppose that it is for 5 years and it is also for 5 years, ठीक है, ये दोनों के लोन आपका 5 years के लिए, मतलब दो कंपनीज है, एक ने आपका फिक्स रेट पे लोन लिया है, दूसरे ने आपका फ्लोटिंग पे, ठीक है। नाउ swap are private contract, what they generally did after some time, let's say after 2 years, the current MCLR is suppose that 9%, ठीक है, ये आपका 9% है, ठीक है,
अब लेट्स से बी अज्यूम कि आने वाले समय में बी का एक्सपेक्टेशंस क्या है विद एमसीएलआर विल गो अप, ठीक है। इसको लगता है कि आने वाले समय में ये जो एमसीएलआर है ये और ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर ये ऊपर गया तो इसको क्या होगा, जैसे ये 10% होगा तो इसका इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा 11.50, जो अभी 10% 10.50 है। दूसरा, ये जो ए है दे हैव अ माइंडसेट कि एमसीएलआर विल कम डाउन इन द नियर फ्यूचर। इसको लगता है कि अगले 3-4 सालों में एमसीएलआर विल कम डाउन टू 7%, ठीक है। तो 7 प्लस 1%, 1.5 इट इज आपका 8.5, मैं यहाँ पे 10% दूंगा, तो ये ज्यादा अरेंजमेंट हो सकता है। सो व्हाट दे जनरली डिड, दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर दे जनरली स्विच देयर कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर्स, ठीक। ये जो फिक्स वाला था वो फ्लोटिंग में चला गया, जो फ्लोटिंग वाला था फिक्स में आ गया। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दीज टू पार्टीज इज जनरली नोन एज swap contract, interest rate swap, ठीक है, where they are generally exchanging their contract based on this, ठीक है। तो यहाँ पे interest rate swap आपका, ऐसे ही we have different type of swap like currency swap और commodity swap और credit default swap, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। तो ये हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में, इतने ही नहीं बल्कि मैंने आपको 7-8 टाइप्स के जो स्वैप्स हैं वो सारे स्वैप्स आपका काफ़ी डिटेल में बताएं, प्लीज गो थ्रू दोस्त, ठीक है। Which of the following factor is primarily differentiate swap from other derivatives instrument like future and option? तो swap आपका क्या है, OTC है पहले, तो ये ध्यान रखें, ठीक है। Swap are always traded on exchange, पहला ही गलत है, ठीक है, always लिख दिया। Swap require upfront premium unlike options, no. Swap involve periodic cash exchange over a time, whereas future and option involve one-time transactions. It can be, ठीक है। Unlike future and option, swap do not have underlying asset. No, those all have underlying asset. Derivative है तो आपका future, forward, option, swap, everyone they have underlying asset. So C will be right answer for this particular one. ठीक है। So swap are private contract between two parties. So mostly they get traded on OTC. जैसे आपका बैंक एंड सम कंपनीज, ठीक है, बट वेयर कैश फ्लो आर एक्सचेंज पीरियोडिकली ओवर द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन, ठीक है। जैसे आपका ईयरली, क्वार्टरली, जो भी उनका नेगोशिएटेड टर्म्स है उनके हिसाब से जो डिफरेंसेस आपके हैं, ठीक है, आपका इंटरेस्ट रेट्स के बीच में, सो दे विल शेयर विद ईच अदर्स इन कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर एंड दस इट इज इन्वॉल्व वन टाइम सेटलमेंट वंस। जैसे आपका इनका सेटलमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कब होता है, अगर आपने कोई चीज बाय करी है तो जब आप उसको सेल करोगे तो तभी आपका जो प्रॉफिट लॉस है वो तब आपका अकाउंट होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप CDS, इनमें से कौन सा CDS को आपका डिफाइन करता है। अब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन और वेरी इंटरेस्टिंग वन। नाउ डेज इंडियन बैंक्स ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग दिस पर्टिकुलर वन। सपोज दैट योर बैंक, टीम आपका बैंक है SBI, दे हैव गिवन लोन टू कंपनी एक्स, ठीक है, इन्होंने कंपनी एक्स को आपका लोन दिया है, लेट्स से 100 करोड़ रुपीज, ठीक है। इस कंपनी के करंट क्रेडिट वर्दीनेस को ध्यान में रखते हुए वी हैव गिवन लोन टू दिस कंपनी एक्स, ठीक है। आपका राइट नाउ द कंपनीज क्रेडिट वर्दीनेस इज वेरी नाइस, ठीक है, बहुत मतलब AAA में है ये आपका, एंड द लोन टेन्योर इज फॉर 10 years। अब इसकी क्रेडिट वर्दीनेस अभी बहुत अच्छी है, ठीक है, बट स्टिल देर इज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। इसमें फिर भी आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट आपका है, ठीक है। हो सकता है कल के डेट में 2 साल बाद उसका बिजनेस सही ना काम करे और उसके वो आपका डाउन हो जाए और डिफॉल्ट रिस्क हो जाए, ठीक है। सो फॉर दैट, ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए what your bank will do, they'll enter into a credit default swap, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक दूसरी कंपनी आई XYZ फाइनेंशियल, ठीक है, ये हो सकता है आपका XY एक दूसरा बैंक भी हो सकता है जो आप या जैसे PNB है या कोई अदर बैंक या कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दे प्रपोज SBI की आपका अगर कल के डेट में इफ दिस X डिफॉल्ट, अगर ये X कंपनी डिफॉल्ट करती है, सो वी विल पे यू द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा, we will pay you that particular, basically they are providing insurance to this particular loan, ठीक है। और अब SBI को ये सही लगा, ठीक है, लेट्स से इंटरेस्ट से SBI की अर्निंग हो रही थी 50 करोड़ की, उसमें से बोला कि अगर हम 20 करोड़ इसको भी दे देते हैं तो भी हमारा 30 करोड़ रुपए ये कैसा है, रिस्क फ्री, ठीक है, आपका जो बन जाए। तो दिस अरेंजमेंट बिटवीन दीज टू, सो इन दिस केस XYZ इज द प्रोटेक्शन सेलर and SBI is a protection buyer, ठीक है। so XYZ is providing protection on this particular one। अब यहाँ पे क्या होगा, if in case if like what SBI is doing, without transferring the ownership of asset, they are transferring the risk on that particular asset। आपका इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। आपका बहुत यूज हो रहा है आज के डेट में, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। So a swap in which two parties exchange fixed and floating
रेट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पार्टी पेज पीरियोडिक प्रीमियम इन एक्सचेंज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ क्रेडिट इवेंट सच एज डिफॉल्ट। तो ये बिल्कुल सही है टीम। तो वहां पे आप XYZ फ्री में तो करेगा नहीं ना, दे आस्क फॉर सम मनी, दैट मनी इज जो नोन एज प्रीमियम, ठीक है। XYZ विल रिसीव प्रीमियम और आपका SBI को प्रोटेक्शन। कल के डेट में डिफॉल्ट होता है तो XYZ विल पे टू द SBI, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। अ स्वैप वेयर टू पार्टीज एक्सचेंज कैश फ्लो नोन, अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट अलाउ द होल्डर टू एक्सचेंज डेट नो। तो क्या होगा आपका? B will be right answer for this one. Understood, guys? Next one. Which of the following is not a commonly used type of swap? Interest rate swap, currency swap, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड रेट स्वैप नहीं बल्कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स। वी हैव FRAs, इसमें लिखा होगा कहीं पे, हाँ, FRAs आर पार्ट ऑफ दिस वन, ठीक है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स करेंसी में हम इनको आपका यूज करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो वुड बी बेस्ट हैज यूजिंग कॉमोडिटी स्वैप? बेस्ट हैज यूजिंग कॉमोडिटी स्वैप, ठीक है। तो कॉमोडिटी स्वैप क्या हो रहा है? जैसे लेट्स से यू ओन गोल्ड, आपके पास 100 करोड़ रुपए का गोल्ड है फिजिकल में, ठीक है। नाउ अब आपका जो गोल्ड का रिटर्न है इट टोटली डिपेंड ऑन द मार्केट। ये हो सकता है 100 करोड़ से आपका 500 करोड़ भी हो जाए, हो सकता है 100 करोड़ से 50 करोड़ भी हो जाए। इट इज द रिटर्न ऑन दिस पर्टिकुलर कमोडिटी इज टोटली डिपेंड ऑन मार्केट फैक्टर्स, मींस डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे जनरली क्या होगा ना कि हम लोग जनरली क्या करते हैं आपका टू प्रोटेक्ट, जैसे ये पार्टी ए है, अब पार्टी बी इसके पास गई, दे अप्रोचेस टू पार्टी ए, उन्होंने बोला कि सर ये जो आपका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी चल रहा है, इस पे हम आपको क्या करते हैं, एवरी ईयर वी विल पे यू 15% रिटर्न ऑन दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। 100 करोड़ पे हम 15% का रिटर्न देंगे, मार्केट रिटर्न जो होगा वो हमारा होगा। अगर ये एग्री करते हैं, इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज दिस। अ फार्मर वांट टू लॉक द फ्यूचर सेलिंग प्राइस ऑफ वीट टू अवॉइड द प्राइस फ्लक्चुएशन, किया जा सकता है, ठीक है। पहला ही सही होगा आपका, ठीक है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। So a commodity swap that allow producer or consumer to has fluctuations in commodity price in this, ठीक है। तो गाइस मैं इसको यहीं पे आपका रोकता हूँ। I'll the remaining questions एक बार मैं देख लेता हूँ कितने हैं। ठीक है, सो वी हैव डन टिल 35। हाँ तो हाँ, रिमेनिंग थोड़ा सा क्वेश्चंस हैं, सो आई विल शेयर दिस PDF, तो आप वहां से इनको कर लेंगे। और जो आगे के क्वेश्चंस होंगे दे आर लिंक्ड विद द प्रीवियस कॉन्सेप्ट इटसेल्फ, सो इट इज डूएबल। तो ये आपका डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका IE&IFS के अंदर भी। दिस इज लाइक यूल हैव ड्यूल बेनिफिट, ड्यूल नहीं बल्कि मल्टीपल बेनिफिट, IE&IFS आपका AFM इन CAIB BFM, ठीक है। BFM में बहुत ज्यादा इसका रोल है, ठीक है। देन आपका आने वाले एग्जामिनेशन में और पर्सनल फाइनेंस में भी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो, ठीक है। तो दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप गाइस, यू कैन कनेक्ट मी ओवर देयर इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जस्ट फील फ्री टू आस्क। I'll try to help you out with your queries and all, team. And for other, like if you need any other further help toward your preparation and all, तो उसके लिए भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। So this is it from my side. Thank you for joining this session. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care all and all the very best for your preparation, guys. Thank you.